Hello. Yes. Bhumil and Rushi, is my voice clear? Yes. Yes, sir. Okay. So, रुषि, अभी वो कहाँ आजादी कब मिलेगी आपको? कहाँ से? फ्रॉम क्वारंटाइन पीरियड. सर अभी तो खत्म जैसा ही हो गया है वो. Okay, okay, good. So, good afternoon, students. So now we have a very easy chapter, and now we need to understand one thing. Okay, whenever there is change in profit sharing ratio, so whatever reserves means profits, past profits are there, that we divide in which ratio? New ratio या old ratio? बताओ मुझे. We divide past profits in old ratio. Okay, but it is possible that every time there is a profit? No, sometimes there might be a loss. So loss hai, so we will pass the reverse entry. So make one heading. You can write like this: distribution of past profits or losses. Now, first of all, when I say profit, so it can be like this: general reserve, या फिर name can be profit and loss account credit balance. It is also called surplus. It means profit. There are two names. It is called distribution of past reserves. Okay, reserves का मतलब past profits. Sometimes there may be loss. So if there is loss, then it will be like this: profit and loss account debit balance, or another word is deficit. It means P&L में debit balance है. So profits have credit balance and losses have debit balance. Now another term is also possible. They can write like this: fictitious. Just a minute. Fictitious assets. अब देखो, fictitious का मतलब होता है नॉन रियल एसेट्स. ओके, these are negative profits, non-real assets. Now, another name for this can be deferred revenue expenditure. Not written off. अब देखो, टेंशन मत लो, इट्स वेरी इजी. कि what is deferred revenue expenditure? Now suppose there are some expenditure which you have incurred, but benefit is available even for the future. For example, I have paid insurance policy for 2 years. So you tell me, for current year, whatever
अमाउंट आई हैव स्पेंट वो तो मेरा खर्चा है, बट जो एक्स्ट्रा मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, तो कैन आई से दिस इज माय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी फ्यूचर का एक्सपेंडिचर, ऐसा समझो। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस अभी का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कभी का है, फ्यूचर का एक्सपेंडिचर है। ओके, तो ये फ्यूचर का एक्सपेंडिचर इंश्योरेंस कंपनी को तो पैसे दे दिए, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें अपने पैसे रिटर्न देगी? नो। और नुकसान होगा तो देगी, तो उसमें भी कमाने नहीं मिलेगा। बट कैन आई से एक्सपेंडिचर वंस स्पेंट, नाउ वी कैन नॉट रिकवर बैक। तो ये रियल वाले एसेट्स है या नॉन रियल एसेट्स है? सो नॉन रियल एसेट्स। सो सिर्फ नाम याद रखिए, ऐसा होता है। नाउ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम दोनों ही केस में सीखेंगे कि हाउ जर्नल एंट्री इज पास्ड। ओके, सो हियर if I want to pass journal entry, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दिस रिजर्व्स आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो उनको डेबिट कर दो। सो आई विल राइट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस को भी कैंसिल कर दो, डेबिट, एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस टू A to B का कैपिटल अकाउंट, assuming two partners are there, and this we will distribute in which ratio? Old ratio, that's it. अब जरा सोच के बताओ कि if I want to distribute the negative reserve, losses को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं डेबिट किसको करूंगा? आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, यस, पार्टनर्स कैपिटल। सो यहां पर टू डिस्ट्रीब्यूट द लॉसेस you will have to write कि A का कैपिटल अकाउंट डेबिट, B का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब ये जो रिजर्व्स है दीस आर डेबिट बैलेंस, उनको हमें कैंसिल करना है। सो वी नीड टू क्रेडिट, ये जो भी नाम होंगे वी नीड टू क्रेडिट। सो टू, I can write the names. Names can be profit and loss account, debit balance, or it can be fictitious asset, or it can be deferred revenue expense। अच्छा, एक और चीज अबाउट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर शोवन इन बैलेंस शीट, इसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो बैलेंस शीट में वी डोंट राइट एक्सपेंडिचर, बट समटाइम्स prepaid expense or some expense which are available for the next year, so it is called deferred revenue expenditure. So with this background, I hope we are able to understand okay, how to distribute this. Okay, and एक दूसरी नोट याद रखनी है, नोट sometimes question says that reserves should be
रिटेन्ड, रिटेन्ड का मतलब है रखना है, केप्ट एज इट इज। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कह दिया है कि रिजर्व रखना है, तो इन दिस केस डोंट पास अबाउट जर्नल एंट्रीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर रिजर्व्स को रखना है तो ऊपर वाली एंट्री पास मत करो, तो क्या करना है, एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कैसे होगा, तो ये मैं आपको बताता हूं। इट्स वेरी इजी, ऑलरेडी वी हैव डन इन गुडविल। So I will write gaining partner का कैपिटल अकाउंट, जिसको फायदा हो रहा है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट विल गो टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना होगा वो ध्यान से समझो। अमाउंट विल बी रिजर्व इनटू गेन या फिर सेक्रीफाइस। ओके, और ये हमने ऑलरेडी किया है, लाइक इन गुडविल। सो चलिए, आपको अब ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, डायरेक्टली एक क्वेश्चन समझते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लुक हियर, सो शिवांश, कैन यू रीड द क्वेश्चन? Yes, sir. Ahmad and Akbar are partners sharing in profits in the ratio of 2:1. On the 31st March 2021, their balance sheet showed general reserve of 60,000. It was decided that in future they will share profit and losses in the ratio of 3:2. Pass necessary general entries in each of the following alternative cases. फर्स्ट वन, When general reserve is not to be shown in the new balance sheet. ओके, जो जर्नल रिजर्व नॉट टू बी शोवन, नॉट टू बी शोवन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सो इट्स वेरी इजी, न्यू रेशियो इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओल्ड रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो जनरल रिजर्व है 60,000, नॉट टू बी शोवन इन द बैलेंस शीट। रिजर्व चाहिए ही नहीं, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन द पार्टनर्स, एंड वी ऑलरेडी नो दिस रिजर्व्स आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ओके, जनरल रिजर्व की हमेशा बैलेंस क्रेडिट होती है। सो क्वेश्चन नंबर 16, here we have situation number 1. I will have to pass one journal entry. So prepare the format. Date is given 31st March 21.
31st March 21. So क्या करेंगे हम, रिजर्व्स को डेबिट कर दो, कैंसिल कर दो. जनरल रिजर्व अकाउंट debit. How much was the reserve? 60,000. And divide between partners, Amar, Akbar. So to Amar's capital account and to Akbar's capital account. But how much for Amar? 2/3. And for Akbar, 1/3. So 3 2s are 6. So 20,000 into 2, 40,000. And it will be 20,000. And narration will be being general reserve distributed in ओल्ड रेशियो. बहुत इजी है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. सो दिस इज डन. चेक करते हैं. सो लुक हियर, रिजर्व डेबिट and partners credit 40/20. Now second situation, कि general reserve is to be shown in the new balance sheet. To be shown in the new balance sheet. So should we distribute or not? Don't distribute. Okay. So in situation number 2, I will write. Now, basically here, first part is over. We are dealing with second part. So in second part, एक नोट आपके लिए मैं लिख रहा हूं कि since general reserve is to be shown in new balance sheet. न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व बताना है. we adjust through कौन सा अकाउंट? partners account. Okay, we will adjust through partners account. So if you remember, new ratio minus old ratio will give you what? गेन और सेक्रीफाइस. Yes. Sacrifice कब होगा? If it is negative. लॉस होगा. So now Amar and Akbar. So अमर की बात करते हैं. Look here. For Amar, new ratio is this 3:2. So 3/5, 2/5. And old ratio. Old ratio is 2:1. 2/3, 1/3. So 3 3s are 9, 5 2s are 10, बीच में माइनस साइन, एंड 5 3s are 15. यहाँ पर भी 2 3s are, पहले इससे मल्टीप्लाई करो 6, देन 1 5s are 5, और नीचे 5 into 3, 5 3s are
15. I hope ये आपको पता होगा. So 9 minus 10 is minus 1 by 15. तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव है तो सेक्रीफाइस कर रहा है. सेक्रीफाइस वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. व्हाट अबाउट दिस अकबर, उसका 1 by 15 पॉजिटिव है तो ये गेन कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. ओके, सो अब एक जर्नल एंट्री हम पास करेंगे. इट विल बी लाइक दिस. सो यू कैन पास जर्नल एंट्री अलोंग विथ मी. March 21. सो गेन अकबर को हो रहा है, तो अकबर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड सेक्रीफाइस अमर कर रहा है टू अमर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. नाउ कैलकुलेशन भी मैं यहाँ पे बता देता हूं कितना होगा. नाउ टोटल रिजर्व जो है इनटू गेन या सेक्रीफाइस. बाय दिस वे यू डू द कैलकुलेशन. सो देखो मैं कैलकुलेशन यहाँ बाजू में बताता हूं. कितना था रिजर्व, 60,000, एंड गेन या सेक्रीफाइस 1 by 15 था. ओके, सो 4,000, 15 fours are 60, and here also there will be 4,000, and narration will be being share in general reserve adjusted on change in profit sharing ratio. So raise your hand if you are clear about this. Are you clear? So there are two ways. Okay, अगर रिटेन करना है तो don't distribute, directly adjust to partners capital account. And if you do not wish to retain, so you can distribute. And generally in the absence of information, we distribute the past profits between the partners. Reserves को डेबिट मारो, पार्टनर्स को क्रेडिट करो, and we distribute. So look here, अकबर को डेबिट करना है 4,000, अमर को क्रेडिट करना है 4,000, तो वो हमने कर दिया है. ओके, गुड. चलिए अभी एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं. Here we have question number 17. क्या बात है, we have limited strength. Okay. So Vivek, can you please read question 17? Yes, sir. Meeta, Gopal, and Farhan were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2018, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. On this date, the balance sheet showed deferred advertisement expenditure of rupees 30,000 and contingency reserve rupees 9,000. Okay. Goodwill was valued at rupees 4,80,000. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm on its constitution.
Okay, so look here. Okay, we need to pass the entries for about transactions. So these three partners were having this old ratio and new ratio, and in balance sheet they have few items. So deferred advertisement expenditure, it is having debit balance. Whenever they say expenditure, all the expenditure have debit balance. ओके तो इफ यू वांट टू कैंसल दिस तो इसे क्रेडिट करो, पार्टनर्स को डेबिट करो. ओके देन another thing is contingency reserve. What is contingency reserve? Contingency means emergency. In future if there is emergency, so we need some money, so this is positive reserve. So if you want to distribute तो इसे डेबिट करना है. ओके एंड goodwill we have 4,80,000. So in balance sheet goodwill was already there, so we can divide the goodwill accordingly. So ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर ही डिस्कस कर लेता हूँ, एंड एज ए होमवर्क ऑल्सो यू विल बी एबल टू डू इट. तो देखिए लुक हियर, ये 30,000 डेबिट बैलेंस को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं डेबिट का क्रेडिट कर दूंगा. सो यू कैन सी हियर के आई विल क्रेडिट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके डेबिट किसको कर दूंगा? पार्टनर्स को कर दूंगा. इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. सो देखो 3:1 के रेशियो में 15, 10 and 5 I can do. So are you able to understand first situation? Yes or no? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So similarly, contingency reserve is having credit balance. If I want to distribute, I will debit this contingency reserve. So look here, I have debited contingency reserve by 9,000 and credit to the partners in old ratio. Old ratio was 3:1. Accordingly, you will divide. And in goodwill also do the same thing. Goodwill is debit balance or credit balance? What do you feel? Debit. Debit balance, because goodwill is our asset. तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो what we are supposed to do, we need to credit. Now for goodwill, directly partners account is adjusted because goodwill is given total amount, but when there is change in ratio, so total goodwill we don't distribute, we adjust. Okay, goodwill was valued, so please note here goodwill was valued. Valued का मतलब है it was not there in बैलेंस शीट, ये तो सिर्फ वैल्यू हुई है. ओके सो गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करनी है ऑलरेडी वी नो. सो गुडविल के लिए व्हाट यू विल डू, you will do new ratio minus old ratio and this will give you gain or sacrifice, and accordingly you can distribute the goodwill. Are you clear what to do? कर पाओगे? ओके सो चलिए कल मिलते हैं. कोई डाउट है तो आप मुझे बताना. ओके पहली दो चीज बैलेंस शीट में थी इसलिए पूरी डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट की डेबिट कर दी, बट गुडविल वाज वैल्यूड, गुडविल बैलेंस शीट में था ही नहीं, तो इसीलिए पूरा गुडविल को डेबिट क्रेडिट नहीं करना है. वी नीड टू फाइंड गेन और सेक्रीफाइस एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट, जैसा हमने अभी किया था. क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. ओके चलिए कल मिलते हैं. बाय बाय. यस बोलिए मनमीत. यस सर. सर मेरे को ट्रेडिंग के बारे में मतलब थोड़ा सीखना था आपसे. अच्छा ट्रेडिंग में तो अभी क्या है,
यानी मैं तो ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप है ना 2-3 महीने के लिए स्टॉक का रेंज रखो, कि सब जो फार्मा कुछ स्टॉक्स है बराबर। यस अभी सर। मैं आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे आप हो कि नहीं, हाँ उसमें सर ना वो कुछ अच्छा अच्छा एनालिसिस आता है 2-3 में से, तो सर। वो टाइप की कंपनीज में भी क्या है आप कर सकते हो। लेकिन सर एक्चुअली मेरे हम्म, पास अभी जो होल्डिंग्स है ना, हम्म, जो जो कंपनीज की, मैं आपको एक बार उसकी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। हाँ सर अभी तो पता नहीं, एवरेज ही चल रहा है मतलब। हाँ सिर्फ अभी एक्चुअली न्यूज़ के इसमें क्या है देखो, भरोसे चल रहे हैं। हाँ और हम्म, ये क्या है शॉर्ट टर्म में मैंने तो किए ऑब्जर्व किया है कि ये इवन राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, ये सब लॉन्ग टर्म यस सर। इन्वेस्टर ही है, कि डे ट्रेडिंग वाले नहीं होते हैं। आपने देखे होंगे वो कि इतने पैसे वाले लोग को एवरीडे सट्टा मार के पैसा बनाया, ऐसा नहीं है। आप समझे, यस यानी सर यस। थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू वो देखते हैं, तो क्योंकि सर क्या होता स्विंग है। ट्रेडिंग क्या हाँ होगा? स्विंग ट्रेडिंग तो 10 दिन की टाइम पीरियड के लिए होता है, 10 से 7 दिन के टाइम पीरियड। हाँ अलग अलग नाम होंगे उसमें, तो मुझे भी आइडिया नहीं है, तो वो तो अच्छा। आप सर्च करोगे वैसे आइडिया मिल जाएगी। हम्म। यस सर। तो और अभी सर आप कैसे सर शेयर सिलेक्ट करते हो। सर मैं तो एक्चुअली मूविंग एवरेज से, आरएसआई से, और कैंडल स्टिक्स जो होती है उसका लास्ट 1 वीक की क्लोजिंग से देख के अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करके फिर स्टॉक पिक कर लेता हूँ। अच्छा, तो वो यस सर। कुंदन किशोरी वाला एक मिनट, ये मीटिंग मैं एंड करता हूँ। यस सर।